Hello students, welcome to my channel Arun Physics Portal. In this lecture, I will discuss about the semiconductor PN junction, also called PN junction diode or simply semiconductor diode. We will see how it is formed, what is depletion layer, what is potential barrier across a PN junction, and all that is necessary for proper understanding of the operation of a semiconductor diode in a circuit. This topic is meant for class 12 students of CBSE, ISE, and different state boards. This topic will also be found useful for various competitive exams like NEET and JEE Mains. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. We will now see how semiconductor junctions are formed. Semiconductor junctions are usually formed between the p-type and n-type materials. ये assumption है कि the crystalline structure of group 4 material remains unaltered across the junction and that only the type of impurity changes. मतलब देखिए जी, हमारा अगर सिलिकॉन का वेफर है, उसमें एक तरफ जो है वो ग्रुप 3 इम्प्योरिटी है और एक तरफ हमारा ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी है। तो ये पार्ट जो हुआ ये हो गया आपका पी टाइप और ये पार्ट जो हुआ ये हो गया आपका एन टाइप। तो यहाँ दोनों मिल रहे हैं इम्प्योरिटीज, ये हो गया आपका जंक्शन। ठीक है, तो बनाने का तरीका क्या होना चाहिए? ये नहीं हो सकता है एक लिया पी टाइप मटेरियल और एक लिया हमने एन टाइप मटेरियल, और दोनों के एक एंड को एक दूसरे से सटा के यहाँ पर उसको वेल्ड कर दिया और ये पीएन जंक्शन बन गया। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने से वेल्डिंग के कारण यहाँ पर सरफेस पर जो होगा तो स्ट्रक्चर जो है ग्रुप 4 एलिमेंट का वो बदल जाएगा, जो डिजायरेबल नहीं है। इसलिए पीएन जंक्शन इस तरीके से नहीं बन सकता है। ओके, सो ए पीएन जंक्शन कैन नॉट बी मेड बाय ज्वाइनिंग पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स टुगेदर because surface films and other irregularities could produce major discontinuity in the crystal structure. ओके, आइए देखें ये आखिर जंक्शन बनता कैसे है। सेमीकंडक्टर जंक्शन जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक है एब्रप्ट और एक है ग्रेडेड। एब्रप्ट जंक्शन को हम स्टेप जंक्शन भी बोलते हैं। इन एब्रप्ट जंक्शन the impurity density varies across the boundary abruptly. ठीक है, so in step junction or abrupt junction, the acceptor or donor impurity density in the material is constant up to the boundary and then changes abruptly across the boundary. To produce an abrupt PN junction, a small pellet of group 3 impurity such as aluminum is placed on an N-type silicon or germanium wafer and the system is heated to a high temperature for a short period. एक N-type silicon लिया या germanium wafer लिया, उसमें थोड़ा सा ग्रुप 3 का impurity डाल दिया एक सिरे पर, उसको थोड़ी देर तक बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट किया गया। Aluminum dissolves in silicon in the process so that over a portion silicon changes from N-type to P-type. A PN junction is thus formed between this P region and the remainder of the N-type silicon wafer. Okay, इस तरीके से बनता है हमारा abrupt और step PN junction. In a graded junction, the impurity density varies with the distance away from the junction in some manner. It is formed by drawing a single crystal from a melt of germanium which initially contained impurity of only one kind. During the drawing process, sufficient amount of impurity atoms of the other type is added to change the conductivity type of the melt. तो ग्रेडेड पीएन जंक्शन कैसे बनता है? हमारे पास मान लीजिए एन टाइप जर्मेनियम है या पी टाइप जर्मेनियम है या सिलिकॉन ही है, एन टाइप या पी टाइप का। मान लें कि हमारे पास एन टाइप
जर्मेनियम है, ठीक है, उसका मेल्ट है, उसमें से हम सिंगल क्रिस्टल को खींच रहे हैं। वी आर ड्राइंग ए सिंगल क्रिस्टल फ्रॉम ए मेल्ट ऑफ जर्मेनियम। उसे मान लिया कि शुरू में उसमें सिर्फ एन टाइप ही इम्प्योरिटी है। इस ड्राइंग प्रोसेस के बीच में हम जो मेल्ट है उसमें दूसरे टाइप की इम्प्योरिटी, मतलब यहाँ पर क्या होगा, पी टाइप की इम्प्योरिटी को हम डाल देते हैं टू चेंज द कंडक्टिविटी टाइप ऑफ द मेल्ट। तो पहले जो निकल गया हमारा क्रिस्टल वो था एन टाइप, बाद में निकलेगा वो होगा पी टाइप। इस तरीके से बनता है हमारा ग्रेडेड पीएन जंक्शन। ओके, both types of junctions are extensively used in the manufacture of diodes and transistors. In lecture I shall however confine myself to the abrupt junction only. ओके, देखिए ये हमारा है फिगर 1A, हमें दिखाया है पीएन जंक्शन एट द मोमेंट इट इज फॉर्म्ड, और फिगर 1B जो है ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। ये पी साइड हुआ और ये एन साइड हुआ, ठीक है। देखिए ये जंक्शन जो हमारा है वो है एब्रप्ट जंक्शन। एब्रप्ट मतलब द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी चेंजेस सडनली अक्रॉस द जंक्शन। जंक्शन तक इसका डेंसिटी जो है सो कांस्टेंट है। Na इज कांस्टेंट, Na इज एक्सेप्टेड डेंसिटी इज कांस्टेंट अप टू द बाउंड्री। सिमिलरली डोनर एटॉमिक डेंसिटी जो है सो कांस्टेंट है अप टू द बाउंड्री। ये उस समय की बात है जब जंक्शन जस्ट बना है, ठीक है। तो ये जो स्टेट हुआ, दिस इज स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो है एक्सेप्टर एटम्स की डेंसिटी ज़्यादा है, एक तरफ डोनर एटम की डेंसिटी ज़्यादा है। सो दिस इज स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, तो दोनों और डेंसिटी को इक्वलाइज करने के लिए holes flow to the right and electrons flow to the left। बात समझ में आई? डेंसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है जंक्शन पर, इसलिए दोनों तरफ के एक्सेप्टर और डोनर एटम की डेंसिटी को इक्वलाइज करने के लिए होल्स फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है यहाँ तक? तो देखिए हमारा अनुमान है ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का, दिस इज प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन where the charge carriers flow across the junction to equalize the concentration of electrons and holes on either side of the junction। ठीक है, तो इसके फ्लो होने से वी हैव ए करंट कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। क्लियर? होना ये चाहिए कि डिफ्यूजन का प्रोसेस तब खत्म होता, तब बंद होता डिफ्यूजन, जब दोनों ओर एक्सेप्टर एटम और डोनर एटम की डेंसिटी इक्वल हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा क्यों नहीं होगा, ये जानने के लिए हम फिगर 2 को रेफर करते हैं। देखिए ये हमारा फिगर 2 है, ये आपका पीएन जंक्शन है ये, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारा पी टाइप है, राइट साइड में हमारा एन टाइप है। पी साइड है मतलब, पी टाइप है मतलब इसमें होल्स की संख्या ज़्यादा है, एन टाइप मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो देयर इज अ डेंसिटी ग्रेडियंट अक्रॉस द जंक्शन, इस तरफ ज़्यादा होल हैं, इस तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, चार्ज कैरियर्स मूव अक्रॉस द जंक्शन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से चलेगा इस तरफ। पी टाइप कैसा है, न्यूट्रल है। एन टाइप कैसा है, अपने आप में न्यूट्रल है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला इसको छोड़ के इस साइड, ठीक है। जब ये मान लो यहाँ पर एटम रहा होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया इस साइड, तो ये तो अब न्यूट्रल था, तो जहाँ जाके बैठेगा वो हो जाएगा नेगेटिव आयन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन, ठीक है। उसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा इन साइड को, जाएगा पी साइड में, तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव आयन,
जहाँ पर जाकर बैठ जाएगा जिस एटम पर वो हो जाएगा नेगेटिव आयन। सो अक्रॉस द जंक्शन वी हैव चार्ज लेयर। पी टाइप में जंक्शन के पास होगा नेगेटिव आयन, इनसाइड में होगा जंक्शन के पास पॉजिटिव आयन। सो बिकॉज ऑफ these चार्जेस across the junction we have an electric field across the junction। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा धीरे धीरे फील्ड बिल्डअप होगा, जैसे जैसे चार्ज कैरियर ट्रांसफर होंगे, ठीक है, इसके क्रॉस फील्ड बिल्ड होना शुरू होगा। कुछ फील्ड बन गया, तब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा इस साइड, ये जो नेगेटिव आयन है वो इसको जाने से रोकेगा, रिपल करेगा। ठीक है, ये जाना चाहेगा तो इससे इसका रिपल्शन होगा, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये पूरा जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो कब बंद हो जाएगा? व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्ज इनफ टू रिस्ट्रेन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। रिपल्सन तो आप देख रहे हैं, रिपल्सन हो रहा है, बहुत ज़्यादा चार्ज हो जमा हो जाएगा तो फील्ड का मान ज़्यादा होगा, और यदि फील्ड इतना बड़ा हो गया कि डिफ्यूजन के प्रोसेस को रोक सके तो डिफ्यूजन का प्रोसेस बंद हो जाएगा। क्लियर? सो इन फिगर 2 वी हैव negative ions on the left side of the junction and positive ion on the right side of the junction. So there is a positive charge region adjacent to the junction in the n-type. On the p-type side, the electrons which have traversed the boundary recombine with the positive holes in the valence band, which predominate because of the presence of group 3 atoms. Close to the junction on the p-type side, there is a region of unneutralized negatively ionized group 3 atoms which form a negatively charged region. These are shown in figure 2. As the charges begin to appear on either side of the junction because of diffusion, an electric field begins to build up across the junction. The direction of this field is from positive charge in the n-type material to negative charge in the p-type material, and it opposes the process of diffusion, and an equilibrium is established only when the electric field becomes large enough to restrain the process of diffusion. ठीक है? In the vicinity of the metallurgical junction, therefore, there are few mobile charge carriers. जंक्शन के दोनों तरफ आयन तो हैं, लेकिन कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है, आयन है, which are fixed in the lattice. So that region where we have charges is known as charge depletion region. चार्ज डिप्लीशन मतलब वहाँ चार्ज नहीं है, मतलब मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है, आयंस हैं जो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, इन फैक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इमोबाइल आयंस इट इज ए चार्ज रीजन, ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन रीजन और स्पेस चार्ज रीजन, बट देर आर नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन। और चूंकि उस रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं है, इसलिए उस रीजन का रेजिस्टेंस थ्योरेटिकली इनफाइनाइट होता है। ठीक है, हमने देखा है कि जंक्शन के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हुआ है चार्ज के डिफ्यूजन से। देखिए, ये हमारा पी एन जंक्शन बना था, यहाँ पर ये था हमारा पी टाइप, ये था हमारा एन टाइप। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है एन टाइप में, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप to equalize the concentration of electrons on both sides of the junction। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है राइट से लेफ्ट की ओर, एंड देयरफॉर द करंट ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन करंट, दिस इज योर डिफ्यूजन करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हुआ है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जंक्शन। तो ये हुआ आपका इन साइड, ये हुआ आपका पी साइड। पी साइड में हमने देखा है यहाँ पर नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर पॉजिटिव आयन बने हैं। ये है पी साइड और ये है आपका एन साइड। तो पी साइड में जो नेगेटिव आयंस हैं ये रिपल करते हैं, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन हैं जो दोनों एटम से आए हैं उनको रिपल करते हैं ये इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स टू दी राइट एंड देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज टू दी लेफ्ट। तो ये हो गया आपका आई, ये हो गया ड्रिफ्ट करंट, बिकॉज ऑफ दिस इज ड्यू टू दी
electric field. In the absence of any applied potential, there is no current flow across the junction, and therefore the two currents, the diffusion current and the drift current, must be equal and opposite. ठीक है? शुरू में जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम है तो ड्रिफ्ट करंट का मान कम है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ड्रिफ्ट करंट का मान बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से डिफ्यूजन के प्रोसेस पर रोक लगेगी और धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट का मान धीरे धीरे कम होगा। सो as the process of diffusion continues, the width of the depletion region increases, thereby increasing the electric field across the junction. Consequently, the drift current increases and the diffusion current decreases until the drift current equals the diffusion current. The net current across the junction is then zero and a PN junction is formed. In figure 4, we have shown you the concentration of electrons and holes across the junction. Because we are dealing with the step junction, the concentration of holes and the electrons vary abruptly across the junction. So this is the density of acceptor atoms and this is the density of donor atoms. This is constant across the junction. Changes abruptly from one side to the other one. In figure 5, we have shown you how the charge varies across the p-n junction. On the p-type side, we have seen that we have negative ions. On the n-type side, we have positive ions. So potential here is negative and here is positive. It varies across the junction in the manner shown in this figure. Okay? We have seen that there are negative ions on the p side and positive ions on the n side. So the potential of n side is higher than that of the p side. This difference in potential between the n side and p sides creates a barrier across the junction that prevents the charge carriers from moving across the junction in the absence of an applied electric field. Okay? So this is the figure of the variation of potential across the junction. On the p side, we have negative ions. On the n side, we have positive ions. So n side is at a higher potential than the p side. So this potential barrier prevents the further diffusion of carriers across the junction and is known as potential barrier. So this is all about the semiconductor junction. What are the different types of junctions? What is depletion layer? What is space charge region? How the charge varies across the junction and how the potential varies across the junction. What is potential barrier? I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.